Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Lead Code daily challenge. Find kth bit in nth binary string. So let's start with the question. So you are given two positive integers n and k and a binary string sn is formed as follows. So basically आपको दो integers given है n and k and you can make a binary string sn in the given following way. The s1 is defined as 0. मतलब जो सबसे पहली string है ना s1 is 0. वो पहले से 0 defined है. Then you make the next strings s1, s2, s3 by using this formula. What? Si equal to si minus 1 plus 1 plus reverse of invert of s minus 1. So basically ये कहता है कि if you want to make s of I, if you want to make s of I, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी si minus 1 था उसको उठाओ, उसको ऐड करो, उसके बाद इसके बीच में एक 1 ऐड करो, एक 1 कैरेक्टर ऐड करो, and then what you have to do, you have to reverse and invert the s minus 1. So क्या करोगे, पहले आप s minus 1 को इन्वर्ट कर दो. इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, you have to toggle the bits. अगर 1 था तो वो 0 बन जाएगा, 0 था तो वो 1 बन जाएगा. So you have to what? You have to first take the invert of what? Si minus 1. अब जब ये इन्वर्ट हो जाएगा तो इसको रिवर्स भी करना है, राइट? इसको रिवर्स भी करना है, राइट? And this is how you form the si string by using si minus 1. Okay, let's go to the next part, where plus denotes the concatenation operation, reverse of x returns the reverse string, and invert x inverts all the bits. So you can say 0 changes to 1 and 1 changes to 0. So for example, let's start. Let's say we have s1 equal to 0. तो अब s2 बनाने की कोशिश करते हैं. So s2 में सबसे पहले क्या, s1 ऐड हो गया, 0 आ गया. उसके बाद we add a customary 1, जो कि इसमें बीच में ऐड करना था. That's why we add 1. Then we invert the bit, 0 0 becomes what, 1, and when we reverse 1 it becomes 1. So हमारा जो s2 बनेगा वो क्या बनेगा, 0 1 1. Then we come to s3. s3 में सबसे पहले 0 1 1 as it is ऐड हो जाएगा, because we have s of I minus 1. Then we add a customary 1, जो कि हमें बीच में बोला गया है, and then we invert these bits. Inverting these bits become what, it becomes 1 0 0. And when you reverse, once you reverse 1 0 0, it becomes 0 0 1. And you can see 0 0 1 is attached at the end, right? Then we come to S4. In S4, you can see that, this has been attached initially. Then you take a customary 1 and then you just invert all the bits. It becomes what? 1 0 0 and this way. And then you reverse and add it. So that is how we are making the strings. Okay. So now what the question says is, you have to return the kth bit in Sn. Okay. It is guaranteed that k is valid for given n. Basically, क्या कहता है कि जो भी आप Sn बनाओगे ना, तो kth bit उसमें एग्जिस्ट करती होगी. ऐसा नहीं होगा कि जो k है वो Sn की लेंथ से ज्यादा है. Okay, it will not be like that. So what we have to do, we have to find the kth bit in Sn. For example, जैसे S4 है, S4 में हमको कोई कह दे कि we need the second bit. Second bit क्या है, 1 है, so we'll return 1. हमसे कोई कहता है S4 में tell me the ninth bit. Ninth bit क्या होगी, ये 0 होगी, right? So we'll return 0. कोई 10th bit कहता है, so we'll return this 1. That is how we are going to do, right? Let's go to the test cases. The first test case is like n equal to 3 and k equal to 1. So हमें पहले क्या है, 3 साइज की स्ट्रिंग बनानी है. So basically आप यहीं से देख सकते हो, 0 1 1 0 1 1, then 0 1 1 1 0 0 1, and ये हमारी S3 है. S3 में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी बिट है, इट्स 0. So that's why the answer for this test case is 0. Let's go to second test case. N is 4 and k is 11. So S4 भी यहाँ पर given है. So let's count the 11th bit. 1. अब फिर यहाँ पर तो यहाँ तक तो 8 थी. उसके बाद is what, 9 10, and this is 11th bit. 11th bit we can see it's 1. That's why the answer is 1. Okay. Okay, so let's look at the constraints. So in constraints we can see n is given as at max 20. It starts from n and goes up to 20, and the value of k can go up to the power of n minus 1. So basically हम देख सकते हैं, we can see the first string s1 का लेंथ कितना था, 1 था. उसके बाद क्या हुआ, 3 आया. उसके बाद क्या आया, 7 आया, and then it will be like 15, right? So basically for any given nth string, if you want to find the length of the nth string, it's basically what, it's like 2 to the power of n minus 1. जैसे यहाँ पर 2 power of 4 क्या होगा, 16, 16 minus 1 15. So इसकी string की लेंथ क्या है, 15 है. Now let's look at the brute force approach. Brute force approach क्या बना सकते हैं? The first idea that comes to mind is कि जैसा दिया हुआ है आप वैसा ही बना दो. ओके, फर्स्ट क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू सिमुलेट ऑल ऑफ दी स्टेप्स. हम स्ट्रिंग बनाते जाते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इनिशियली फर्स्ट स्ट्रिंग हम बनाएंगे वो 0 होगी. ठीक है, वो 0 बन गई हमारे पास. उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रिंग S2 बनाते हैं S1 का यूज करके.
राइट, फिर S3 बनाते हैं, फिर S4 बनाते हैं, राइट। इस तरीके से करते जाते हैं कि हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं और जैसे ही हम nth स्ट्रिंग पे पहुंच जाएंगे उसकी kth बिट जो भी होगी वो हम रिटर्न कर देंगे, राइट। हम ऐसे करते हैं। बट नाउ अब देखते हैं इसमें ऑपरेशन कितने लगेंगे। सबसे पहले तो पहली स्ट्रिंग बनाने में तो कोई ऑपरेशन नहीं जानने वाला, राइट। दूसरी स्ट्रिंग बनाने में बेसिकली आप डायरेक्टली एस ऑफ आई माइनस वन ऐड कर रहे हो, वन ऐड कर रहे हो, पर ये रिवर्स और इन्वर्ट करने में तो टाइम जाएगा, राइट। और इसमें इन्वर्ट और रिवर्स करने में टाइम कितना जाएगा, जितना लेंथ प्रीवियस स्ट्रिंग का था। तो अगर आप मान लो किसी mth स्टेज पे हो, इफ यू आर एट mth स्टेज, देन यू नीड टू ऑपरेशंस each with the cost of what, 2 to the power of m -1 राइट। आपका कॉस्ट इतना आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा यहाँ पर S2 था, सो यहाँ पर क्या कहते हैं, द m वैल्यू ऑफ m वाज 2। सो यहाँ पर क्या बेसिकली एक स्ट्रिंग को रिवर्स और रिवर्ट किया है, दो ऑपरेशन लग रहे हैं, राइट। सो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, हर एक का कॉस्ट कितना है, 2 की पावर m-1, क्योंकि इतना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल S3 पे जाते हो, S3 पे क्या है, S3 की लेंथ कितनी है, 7 है। उसमें देखो ये पहले के 3 कैरेक्टर्स कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ये वन आप ऐड कर रहे हो। अब जो लास्ट के 3 है ना, ये बेसिकली कैसे बने, ये बेसिकली स्टार्टिंग के स्ट्रिंग पे इन्वर्जन और रिवर्जन ऑपरेशन लगाने के बाद बने हैं। इसमें हर एक का कॉस्ट कितना आएगा, 3 आएगा। 3 क्या है, 2 की पावर 2 -1, यहाँ पर देखो, राइट। तो टोटल कॉस्ट किसी भी स्टेज पे क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 की पावर m, राइट। नियर बाय 2 की पावर m बन जाएगा, राइट। अब सिंपल सी बात है कि हर एक स्टेज पे 2 की पावर m बन रहा है। सो व्हाट यू डू, यू बेसिकली सम अप द कॉस्ट एट ईच स्टेज, राइट, फॉर m = 1 अप टिल n स्टेज, राइट। सो ये कितना बन के आएगा, दिस विल कम आउट टू अराउंड व्हाट, 2 की पावर n+1 इन वर्स्ट केसेस। सिंपल सी बात है, दिस समेशन यू विल सी कि दिस विल बी अराउंड 2 की पावर n+1। सो लेट्स लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। n की वैल्यू क्या है, 20 है। लेट्स लुक एट द टाइम, टाइम कितना लेगा ये, 2 की पावर, बेसिकली व्हाट, 20+1 इन वर्स्ट केसेस इतना लंबा जाएगा, इट्स 21। ये कितना बड़ा है, ये अराउंड 10 की पावर 6 से भी बड़ा है। यू कैन सी दैट दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली व्हाट, इट्स एक्सपोनेंशियल, वो हमें पता है। बट एट द सेम टाइम वी कैन सी दैट इट्स वे टू मच कि वो टेस्ट केस पास हो जाए, राइट। सारे टेस्ट केस में पास नहीं हो पाएंगे बिकॉज बिकॉज द वैल्यू इज वे बिग। एट द सेम टाइम इसमें जो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हैं दैट आर ऑल्सो बिग, राइट। अब ये याद रखो कि हर बार जो आपकी स्ट्रिंग है वो बाय 2 की पावर बढ़ रही है, उसकी जो लेंथ है बाय 2 की पावर बढ़ रही है, दैट्स वाई योर मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो हाई। टाइम इज हाई, memory requirements are also high, requirement is also high। so इस वाले अप्रोच में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये टीएलबी मार सकता है या तो ये एमएलई भी मार सकता है। अब एमएलई क्या होता है, एमएलई इज मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। आप इतनी बड़ी स्ट्रिंग्स लगातार बना रहे हो, तो दैट्स वाई मेमोरी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, दैट्स वाई एमएलई भी आ सकता है। सो अब हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, हाउ डू वी ऑप्टिमाइज दिस अप्रोच। हम आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस रिवर्स इन्वर्ट ऑपरेशन। बेसिकली रिवर्ट एंड इन्वर्ट आर इंटरचेंजेबल। I'll tell you how. How it means कि revert of invert of s is basically same as invert of reverse of s। ये दोनों ऑपरेशन बेसिकली इक्वल है। आप चाहे रिवर्स पहले लो या फिर चाहे इन्वर्ट पहले ले लो, तो फाइनल स्ट्रिंग होगी वो सेम होगी, राइट। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते हैं, राइट। अब कोई भी स्ट्रिंग जैसे कि हमें पता है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, si-1 1 एंड दिस पार्ट, राइट। सो हम पहले क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा kth बिट है ना, वो क्या पहले पार्ट में लाया करता है, क्या वो इसके बराबर, इस वन के बराबर है, या फिर वो इस फाइनल पार्ट में लाया करता है। सो वी ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू 3 पार्ट्स। वी ब्रेक प्रॉब्लम इनटू 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स क्या है हमारे, फर्स्ट है इफ k इज लेस देन व्हाट, इफ k इज लेस देन क्या, अगर इस पहले पार्ट में लाया करता है, सो दिस व्हाट, एट n स्टेज, इफ दिस इज लेस देन 2 की पावर ऑफ n, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल इसमें s=4 में ये पहले 7 कैरेक्टर है, राइट। देन वी सी दिस इज द 8th कैरेक्टर, एंड देन वी हैव 7 मोर कैरेक्टर, दैट्स व्हाई 7 + 1 + 7 इट्स 15, राइट। सो अगर k लेस देन 2 की पावर n है, तो ये पहला पार्ट में ब्रेक हो गया, राइट। दिस मीन्स कि जो हमारा kth बिट लाया करता है ना, वो पहले वाले पार्ट में लाया करता है, करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, kth bit lies in first half,
राइट। अब आता है अगर k 2 की पावर n के बराबर है, इफ k इज इक्वल टू 2 की पावर n, इसका मतलब डायरेक्टली वो क्या है, वो 1 है। अब किसी भी स्ट्रिंग में देख सकते हो कि जैसे 2 की पावर 3 था, राइट, तो 2 की पावर 3 में क्या है कि दिस बेसिकली व्हाट, दिस इज नॉट n, दिस इज n-1। अब अगर n स्टेज पे हो तो n-1 को देखोगे, तो आप देख सकते हो इफ k इज एक्जैक्टली इक्वल टू 2 की पावर ऑफ n-1, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 पे देखो 1 है, इसमें भी देखो 1 है। सो वेन एवर के इज इक्वल टू की पावर ऑफ n-1, दिस मीन्स कि वो डायरेक्टली ये वाली बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन दिस केस kth बिट इज व्हाट, kth बिट इज 1। अब इसको रिटर्न करा सकते हो। लेट से अगर आपका जो kth बिट है ना, वो 2 की पावर n-1 से बड़ा है, नाउ क्वेश्चन बिकम्स इंटरेस्टिंग। अब अगर जब ऐसा केस है कि हम कहां पर लाई कर रहे हैं, हम इस वाले पार्ट में लाई कर रहे हैं, राइट, इस वाले पार्ट में लाई कर रहे हैं, इन दिस केस इस वाले हिस्से में। नाउ हाउ डू वी ऑपरेट ऑन दिस, एज आई सेड कि इन्वर्ट और रिवर्स सेम ऑपरेशन है, राइट, वी कैन इंटरचेंज देम। तो इस वाले पार्ट को ना हल्का सा चेंज करते हैं। वी कैन से कि हम पहले रिवर्स लगाएंगे और बाद में इन्वर्ट लगाएंगे, हम बाद में इन्वर्ट लगाएंगे, क्योंकि आंसर तो फिर भी सेम आने वाला है, राइट। तो अब क्या करते हैं, अब आप इधर देखो, लेट्स टेक अ टेस्ट केस, जैसे आप 11 पकड़ रहे हो, यहाँ पर 11 के इक्वल टू 11 है। सो वी कैन सी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर क्या 1 क्या होगा, 8 होगा, राइट। दिस इज द एट्थ वन। जैसे यहाँ पर पहले 7 स्ट्रिंग्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 1 आता है। नाउ वी कैन सी दिस 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 स्ट्रिंग, राइट। अब ये स्ट्रिंग बना कैसे है, ये स्ट्रिंग बेसिकली बना है पुराने वाले स्ट्रिंग को रिवर्स और इन्वर्ट करके। तो सिंपल सी बात है, जब रिवर्स किया होगा ना, तो इसकी जो अभी पोजीशन है वो इंटरचेंज हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी इसकी पोजीशन क्या है, अगर आप देखो इस वाले स्ट्रिंग में ये जो 1 आया है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन निकल के आ रही है 3, राइट, इसकी पोजीशन निकल के आ रही है क्या, 3। अगर आप इसी को अगर आप रिवर्स कर दो, इन्वर्ट कर दो, अगर आप ट्रेस बैक करो ऑपरेशंस को, तो ये क्या बन के तैयार होगा, ये बन के तैयार होगा व्हाट, 1 0 0 0 1 1 0, और इसको इन्वर्ट भी करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 1 1 और 0 0 1। तो आप देख सकते हो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट, द फिफ्थ कैरेक्टर इन द प्रीवियस स्ट्रिंग। जो यहां पर अभी थर्ड बना बैठा है, दैट इज बेसिकली व्हाट, फिफ्थ कैरेक्टर इन द प्रीवियस स्ट्रिंग। आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें 1 रिटर्न हुआ था, आप इधर से देख लो ना। अब यहां पर देखोगे, सो ये जो 1 आया है वो बेसिकली कैसे आया है, इस वाले हिस्से को रिवर्स करके, राइट। दिस स्ट्रिंग दिस कैरेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये वाला पार्ट, राइट। दिस कैरेक्टर इन प्रीवियस स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स दिस वाला कैरेक्टर विच इज फिफ्थ। सो बेसिकली अगर हम सेकेंड हाफ में लाई करते हैं, तो हमें कुछ अपडेट करनी होगी पोजीशन को। पोजीशन को अपडेट कैसे करते हैं, अब वो देखते हैं। नाउ इन केस अगर हम बड़े हो रहे हैं 2 की पावर n-1 से, लिमिट से, सो लेट्स सी कि ये जो k है वो आखिर लिमिट से कितना बड़ा है। लेट्स से कि लिमिट को हम डिफाइन कर देते हैं व्हाट, लिमिट को डिफाइन कर देते हैं 2 की पावर ऑफ राइट। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि ये कितना आगे है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये k11 दिया हुआ है, सो वी हैव टू सी कि ये लिमिट्स वाली लिमिट से कितना बड़ा है। जो पहला ये वाला हाफ है ना, s-1 + 1, ये इससे कितना आगे लाई करता है। सो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ डिफरेंस वैल्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट, k माइनस व्हाट, लिमिट, क्योंकि हमें पता है कि भाई k जो है वो लिमिट से तो बड़ा है, राइट। अब ये जो डिफरेंस आया है ना, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वाला हाफ है ना, इसमें kth बिट की पोजीशन क्या है। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स ये d जो है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द kth बिट इन द सेकंड हाफ। अब क्या है, अब हमें जानना है कि इस बिट की पोजीशन पिछले वाले स्ट्रिंग में क्या थी, राइट। ये तो हमने पता लगा लिया कि भाई kth बिट की पोजीशन इस करंट जो रिवर्स और इनवर्स वाली पोजीशन पे है, स्ट्रिंग आई है, उसमें क्या पोजीशन है। बट वी नीड टू फाइंड कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, जो प्रीवियस लेवल पे स्ट्रिंग थी, उसमें इस वाले कैरेक्टर की पोजीशन क्या है, बाय बिकॉज वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। सो दैट्स वाई आपको पता होगा, सिंस कि ये जो स्ट्रिंग बनी वो रिवर्स करके बनी है, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसकी जो फाइनल लेंथ होगी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल पोजीशन वुड बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट माइनस डी। आपको पता होगा, इफ यू वांट टू फाइंड द kth, और लेट्स से इफ यू वांट टू फाइंड द mth नंबर फ्रॉम द एंड, इट्स बेसिकली n माइनस m पोजीशन, राइट। आपको पता है, इफ समवन आस्क्स यू द क्वेश्चन कि व्हाट इज द mth कैरेक्टर और mth पोजीशन फ्रॉम द एंड, इट्स बेसिकली व्हाट, इट्स n माइनस mth कैरेक्टर, राइट। हम वही चीज यूज कर रहे हैं यहाँ पर,
राइट। और ये हम n माइनस m वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हुआ है। सो बेसिकली तो हमारी जो n माइनस वन लेवल था उस पे हमारा k का पोजीशन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लिमिट माइनस के। सो ये बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि पिछले स्टेज पे kth बिट की पोजीशन क्या थी, राइट। नाउ एट द सेम टाइम ये तो हो गया भाई पोजीशन पता लगाना, दिस वाज फॉर द इनवर्स पार्ट, राइट। अब क्या है, ये जो बिट आएगी ये इनवर्स भी हुई है, राइट। जो भी ये बिट आने आई है वो इनवर्स भी हुई है, दैट्स व्हाई वी एक्चुअली रीअरेंज द ऑपरेशन, राइट। हमने क्या किया, इनवर्स को बाद में लेंगे हम। एज आई सेड कि ये दोनों ऑपरेशंस इक्विवेलेंट है, दैट्स व्हाई हमने पहले रिवर्स निकाल लिया कि पोजीशन क्या है kth बिट की है। नाउ वी लग रहा था इन्वर्ट पोजीशन। अब इन्वर्ट तो बड़ा सिंपल है, सिंपल सी बात है, हम एक एक बिट पे काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इन्वर्टिंग अ सिंगल बिट विल टेक ऑर्डर वन ऑपरेशन, राइट। इन्वर्टिंग अ सिंगल बिट विल टेक ऑर्डर वन ऑपरेशन, राइट। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम दिस ऑपरेशन, दिस अप्रोच विल टेक हाउ मच टाइम, हम हर एक पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, हम n से n माइनस वन पे जा रहे हैं, फिर n माइनस टू पे जा रहे हैं। एट द सेम टाइम हम कोई भी स्ट्रिंग नहीं बना रहे हैं, हम एक्चुअली में नंबर स्ट्रिंग को रिवर्स करके नहीं देख रहे हैं, हम एक बिट को रिवर्स कर रहे हैं, बस एक बिट को रिवर्स कर रहे हैं। रिमेंबर, वी आर नॉट इन्वर्टिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग, वी आर जस्ट इन्वर्टिंग अ बिट विच विल टेक हाउ मच टाइम, विच विल टेक ऑर्डर वन ऑपरेशन। सो पर बेसिकली इन्वर्टिंग विल टेक व्हाट, हाउ मच टाइम, ऑर्डर वन पर ऑपरेशन, पर स्टेप, राइट। और ये तो आपने देख ही लिया कि ये भी ऑर्डर वन में हो रहा है, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ kth बिट इन द प्रीवियस स्ट्रिंग, दिस इज बेसिकली आल्सो ऑर्डर वन, राइट। और हमारे ऐसे n स्टेप्स चल रहे हैं। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाती है, ऑर्डर n। सो नाउ वी कैन सी कि हमने मेमोरी रिक्वायरमेंट्स को बहुत रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स अब कोई भी नहीं रह गए हैं, वाई, क्योंकि हम कोई भी स्ट्रिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो ऑप्टिमाइज्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हिच इज नाउ ऑर्डर n। आप देख सकते हो n बहुत छोटा है, राइट। n इज नाउ व्हाट, 20, इट्स अराउंड ऑर्डर ऑफ 20। बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग जो आएगा, कोई भी टेस्ट केस आएगा, वो अराउंड 20 ऑपरेशंस में इन द वर्स्ट केस आराम से उसका आंसर निकाला जा सकता है। नाउ लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस अप्रोच। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, हम इसको रिकर्जन से करके देखेंगे, बिकॉज रिकर्जन विल एक्चुअली ईज आर इम्प्लीमेंटेशन, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द अप्रोच। सो व्हाट विल डू, हमारा बेस केस क्या है, अगर n इक्वल टू वन हो जाता है, अगर n इक्वल टू वन हो जाता है तो हमारा कैरेक्टर क्या है, इट्स जीरो, विल रिटर्न जीरो, लेट्स रिटर्न जीरो। अब क्या करते हैं, एल्स हम क्या करेंगे, वी नीड टू कैलकुलेट द लिमिट, राइट। से पहले लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज लिमिट वैल्यू, टू की पावर ऑफ n माइनस वन। सो इट्स बेसिकली, हम इसको क्या करेंगे, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से निकालेंगे, वन लेफ्ट शिफ्ट n माइनस वन, दिस बेसिकली इक्वल टू फाइंडिंग टू की पावर ऑफ n माइनस वन। ये हमें मिल गया लिमिट। अब क्या करेंगे, अब तीन केसेस लिखेंगे। इफ k इज लेस देन लिमिट, तो क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ये तो साफ सुथरा ऑपरेशन है, इसमें ना कोई इन्वर्जन है ना कोई रिवर्जन है, दोनों एकदम सिंपल सा ऑपरेशन है। इस केस में क्या करेंगे, बस सिंपली फाइंड kth बिट, पिछले प्रीवियस स्ट्रिंग पे जाएंगे, पिछले स्टेप पे जाएंगे, एंड के वही रहेगा, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, के जो है वो अभी हमारे इस वाले रेंज से छोटा है, राइट। सो हम बेसिकली फर्स्ट हाफ में डील कर रहे हैं, सो हमें ये पोजीशन अपडेट करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन अपडेट करने की जरूरत कहां पड़ेगी, जब हमारा रिवर्जन वाला ऑपरेशन है, क्योंकि उसमें ही पोजीशन चेंज हुई है कैरेक्टर्स की, राइट। फिर आता है एल्स इफ के एग्जैक्टली इक्वल टू लिमिट, अगर के लिमिट के बराबर है तो भाई डायरेक्टली ये वाला केस बन गया, या अगर के जो है वो लिमिट के बराबर है, देन व्हाट वी आर हैविंग, के बिट इज वन, सो विल रिटर्न जस्ट वन। अब आता है हमारा लास्ट वाला पार्ट, जो कि कहता है कि के इज बिगर देन लिमिट। उस केस में क्या करेंगे, हमको याद रखना, पहले रिवर्स करना है, उसके बाद इन्वर्ट करना है। सो आई राइट इट इन सिंगल लाइन, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न व्हाट विल रिटर्न, रिटर्न कैरेक्टर ऑफ व्हाट, जीरो प्लस व्हाट, वन माइनस व्हाट, फाइंड kth हिट, एन माइनस वन प्रीवियस स्टेप पे जाएंगे, और इसकी kth की पोजीशन अपडेट होगी, क्या बन जाएगी, एज वी डिस्कस्ड, टू इंटू लिमिट माइनस के। सो के पोजीशन की अपडेट होके नई पोजीशन क्या बन जाएगी, के इंटू लिमिट माइनस के, राइट। और ये हमारा हो गया। अब ये देखो, दिस पार्ट इज यूज फॉर रिवर्स, दिस इज बेसिकली द रिवर्स ऑपरेशन। उसके बाद अब वन से माइनस करते हो, ये किस लिए, दिस इज द इन्वर्जन पार्ट। इनवर्स कैसे है, आप समझो, यहां पर अगर जीरो आया होगा
तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 0 से 1 पे टॉगल हो गया। लेट से यहाँ पर अगर 1 आया होता, लेट से यहाँ पर 1 आया होता, तो 1 - 1 0 हो गया होता। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये 1 माइनस करने वाला, दिस बेसिकली टॉगल्स द बिट, ये इन्वर्जन ऑपरेशन है। उसके बाद ये कैर ऑफ 0 प्लस करने का मतलब क्या है, दिस बेसिकली कन्वर्टिंग द नंबर वैल्यू 0 और 1 इनटू कैरेक्टर, राइट। अब क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। थोड़ा मैं आप देख पाओगे अच्छे से थोड़ा। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। ओके, इट्स गिव अ रॉन्ग आंसर। ओके, सो हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज ऐड करना भूल गए। दैट इज बेसिकली दिस विल बी रिटर्निंग अ कैरेक्टर, राइट। हमें यहाँ पर तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, सो व्हाट विल डू, विल जस्ट डू माइनस ऑफ 0। दिस इज ऑल। ये -0 करने से दिस विल कन्वर्ट इनटू अ नंबर, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड अगेन। So you can see that it passes the test cases, sample test cases. Let's try to run it for all test cases. So yes, we can see that our piece of code passes all the test cases, and we can also see it has beaten all of the previous C++ submissions. So basically, it's very fast, right? As we discussed. Now let's discuss the space and time complexity. If you ignore the, let's talk about space complexity. If you ignore the stack space for the recursion, then space complexity is basically what? It's order one. It's order one. And the time complexity is what? As we discussed, it's order n. It's what? It's order n. क्योंकि आप हर एक स्टेप पे बस एक एक पीछे जा रहे हो, राइट। और बाकी आप ना स्ट्रिंग बना रहे हो ना कोई और ऑपरेशन कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट? ऑर्डर n. So I think that's all for today, guys. I hope you like the explanation. I hope you like the problem statement. I hope you like the solution, the explanation of the solution. If you do like, so please like, share, and subscribe, and share it with your friends and peers. You can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are given in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in the description. And till then, we'll meet again tomorrow with another LeetCode Daily Challenge. And bye bye. Happy coding, guys.